बच्चों के अदीब डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को साहित्य अकेडमी की जानिब से अवार्ड मिलने की खुशी में अंजुमन इस्लाम जामा मस्जिद शिकारीपुर और बाशिंदगान शिकारीपुर की जानिब से एजाजी इजलास का इनकाद अमल में आया। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी तकरीबन 3 दहाइयों से इल्मी अदबी खिदमात बिलखुसूस अदब इत्फाल पर आबियारी में मसरूफ रहे हैं। शिकारीपुर की मुख्तलिफ तंजीमें, अंजुमने, उलमा इकराम और दूसरे तालीमी शोबों से वाबस्ता लोगों ने तकरीब में हिस्सा लिया। सलामुन अलैका, खुदा ने कलाम अपना तुम पर उतारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा। तुम्हारे करम से मुसलमान हुए हम, जमाने की नजरों में शीशा हुए हम। मयसर हमें रहबरी है तुम्हारी ज़मासाज़। इस तहनीती इजलास में साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा और इनके फर्जंद रुकन पार्लियामेंट राघवेंद्रा, रुकन असेंबली हड़ताल हालप्पा मौके पर पहुंचकर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की तहनीत पेश की। पत्थर जला घर में चूल्हा न एक दिन बराबर, मगर हर घड़ी सोचा उम्मत की खातिर, वतन तक को भी छोड़ा उम्मत की खातिर, वतन तक को भी छोड़ा उम्मत की खातिर। सताया तुम्हें दीन के दुश्मनों ने, बुतों। इस मौके पर BS येडियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिकारीपुर और रियासत कर्नाटक का नाम डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने रोशन किया है। समाज में इस तरह के लोगों की वजह से विकार बढ़ता है। डॉक्टर हाफिज कर्नाटक ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಹರತಾಳ ಹಾಲಪ್ಪ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಸಂಗತಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಗೋಸ್ಕರ ತಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶೇಳ್ಕೊಬ್ಬದ ಹತ್ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗುಣಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ। ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ಅವರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी के बाल साहित्य पुरस्कार हासिल करने के बाद पूरे रियासत में इन्हें एजाज से नवाजा जा रहा है। शिकारीपुर और आसपास के देहातों से आए तमाम लोगों ने डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी को तहनीत पेश की और उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने हमारी रियासत का नाम रोशन किया है। सलामुन अलैका, सलामुन अलैका, खुदा ने कलाम अपना तुम पर उतारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा, जो हम बेशऊरों का है एक सहारा। तुम्हारे करम से मुसलमान हुए हम, जमाने की नजरों में शीशा हुए हम। मयसर हमें रहबरी है तुम्हारी, ज़मासाज़ पैगंबरी है तुम्हारी, ज़मासाज़ पैगंबरी है तुम्हारी। किए फाक और पेट से बांधे पत्थर, जला घर में चूल्हा न एक दिन बराबर, मगर हर घड़ी सोचा उम्मत की खातिर, वतन तक को भी छोड़ा उम्मत की खातिर, वतन तक को भी छोड़ा।
ستایا تمہیں دین کے دشمنوں نے، بتوں کے پرستاروں نے مشرکوں نے، کبھی تم نے ہاری نہیں اپنی ہمت، سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رسول خدا آفتاب۔ شکاری پور جے نگر سے آئے ہیں، اتنا خوشی ہو رہی ہے، آج عید کا دن جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ مولانا امجد حسین کو ایوارڈ ملا اس سے، پورے گاؤں میں جشن منا رہے ہیں۔ بچپن کے دوست ہیں، بچپن سے ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کے والد کو بھی جانتے تھے۔ والد اردو اسکول کے ماسٹر تھے اور والدہ بھی اردو اسکول کے ماسٹر تھے۔ اب یہ جو ہیں اتنے خدمت کے ہیں، جو شکاری پور کے اندر مدرسہ نہیں تھا، مدرسہ بنائے، اور غریب بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے بہت مدد کیے۔ جتنا بھی ان کے تعریف کریں کم ہے، اور جو اکیڈمی ملا جو پورے شکاری پور کا، پورے ہمارے مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ مولانا امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب، جو ان کا انجام کام جو اب تک جو کیے ہیں، کوئی آگے بھی نہیں آئے گا، پیچھے بھی نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا کام کیے ہیں کہ اس کی تعریف ہی تعریف ہے۔ مگر یہ اردو اکیڈمی میں جانے کے بعد اکیڈمی کیا چیز کرنے کا یہ معلوم کرے، اردو کیا کرنے کا یہ معلوم کرے۔ جو ہمارے مسلمس کو اور ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے شکاری پور میں جو یہ نام کی ہستی، ایسے کام بھی زندگی پر نہیں ملتے۔ ان کے ماں باپ کی، ان کے ماں کی، باپ کی، ان کے بھائیوں کے، سب کی ہمارے پورے شکار پور تعلق والے کی ان کی دعا ہے، ان کے اوپر یہ کام اور انجام کرنے والے ہیں۔ آگے بھی ان کو اللہ ہدایت دیں دے اور بہت بڑے کام کرنے میں کامیاب کریں دیں انشاءاللہ ضرور۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، میں شہر شکاری پور شان خان محلے میں رہتا ہوں۔ میں حافظ صاحب کے ساتھ تقریباً 20 سال سے جڑا ہوا ہوں، ان کی تعلیمی خدمات میں دیکھ رہا ہوں۔ حافظ صاحب یہ ایک شکاری پور جو ہے بڑے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھا۔ حافظ صاحب کی بڑی محنت تھی کہ یہاں کے لوگوں کو تعلیمی جو میدان میں پیچھے ہیں وہاں سے ان کو آگے لائیں۔ تو حافظ صاحب نے نرسری سے شروع کر کے جو ہے یہاں پر ڈی ایڈ کالج بھی لائے، ڈگری کالج بھی لائے۔ یہاں کا جو تعلیمی میدان سوکھا تھا اس کو انہوں نے زرخیز کیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ انہوں نے کئی کام انجام دیے۔ مولانا نے، میں جب آیا تھا معصوم ترانے ان کی شروعاتی کتاب تھی، یہ اتنی مقبول ہوئی، پوری دنیا نے ان کو اس کتاب کو سراہا۔ کئی کتابوں کو مختلف قسم کے ان کو ایوارڈ دیے گئے۔ ان کو ابھی جو ہے حکومت نے ان کو اردو اکیڈمی کا جو ہے چیئرمین بھی ان کو منعقد کیا تھا، بنائے تھے۔ انہوں نے کافی کام کیے اس میں، اور حافظ صاحب کی خدمات کو گورنمنٹ نے سراہا۔ فخر وطن ان کی کتاب کو بنیاد بنا کر ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے ان کو بال ساہتیہ پرسکار سے نوازا گیا۔ ہم نے ادارے نے ان کی خوب ستائش کی کیونکہ وہ قابل ہیں، اس قابل۔ شہر شکاری پور والوں نے بھی جو ہے ان کے کام کو بنیاد بنا کر، ان کو جو ایوارڈ دیا گیا اس کو بنیاد بنا کر جو ہے یہاں پر اعزاز کرنے کا ایک بہترین عالیشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے شکاری پور میں یڈیورپا سے بعد راگو سے ہمارا مسلمانوں کو کیا بھی تکلیف نہیں، آگے بھی تکلیف نہیں ہوتی کر کو ہمیں یقین کر لی۔ ان کے اس پیچھے چاہیے ہمیں بہت آدمی ہیں، انہوں ساتھ دینا، ہم آگے بھی ساتھ دینا، ابھی بھی ساتھ دینا انہوں۔ بچوں کے ادب میں شروع سے ہی دلچسپی تھی۔ تقریباً میں استاد بھی تھا ایک مدت تک تھا،
वही वो ज़माना, ये जो मासूम बच्चे नज़र आते हैं इन्हीं का तुफैल है। मेरे क़लम को रोशनाई बख्शी, रोशनी बख्शी, उस रोशनाई के तुफैल मैं आगे बढ़ता रहा। मेरी पहली किताब मासूम तराने, जिसमें मैंने बहुत छोटी छोटी नज़में लिखी, बहुत छोटी नज़में, लेकिन वो इतनी मकबूल हो गई, शायद कितनी लाख किताबें अब तक बाहर आई मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बाहर की दुनिया ने भी मुझे, पूरी उर्दू दुनिया ने इसकी तारीफ़ की। उसके बाद मेरा सफ़र महकती कलियाँ चलता रहा। फ़कत आज प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपको बोल दूं, बाल साहित्य पुरस्कार के बाद ये हिंदुस्तान में जो अवार्ड का सिलसिला 10 साल से जारी है। ऐसा तो साहित्य अकादमी 50 साल से देती है, 1950 से देती है, लेकिन ये बाल साहित्य जो है बच्चों के अदब का 10 साल से जारी है। मैं खुश हूँ कि पहली मर्तबा कर्नाटक को मिला है, कर्नाटक को मिला। ये जो है कई शोरा उदबा गुजरे हैं, लेकिन ये एजाज़ अभी तक हासिल नहीं हुआ है, तो कितनी एक बड़ी बात है कि ये इसकी एक तफसील, नाम के साथ इसकी मैं तफसील इंटरव्यू आपको दूंगा इस वक्त। आप हाँ, मैं बताता हूँ कि मुझे ये फ़ख्र वतन पर मिला है। अभी ये बाल पुरस्कार के नाम से इन्होंने जारी किया शॉर्ट स्टोरीज़, बच्चों के अदब में उनको अच्छे लगे शॉर्ट स्टोरीज़, और मुख्तलिफ लाइन के छोटे छोटे प्रोग्राम, और उसके बाद क़िस्से कहानियाँ। ड्रामा में बानू सरताज को मिला, मनाजिर हरगानवी को मिला, इंतकाल हो गए वो, कुछ लोग इंतकाल भी हो गए हैं, लेकिन मुझे जो मिला है फ़ख्र वतन बियोग्राफ़र के नाम से, यानी सवान निगार। मुझे जो है, मैं ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान के बारे में मैंने उस पर लिखा था, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखा था, सर सीवी रमन के ऊपर लिखा था, और बस समझे कि राधा कृष्णन जी के ऊपर लिखा था, और राजा राम मोहन राय पे लिखा था। शायद वो किताब बहुत पसंद आ गई। लगता है कि कौन सी, पहले यूनिवर्सिटी से तस्दीक करना पड़ता कि यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटियों ने मेरी तायीद की, यूनिवर्सिटी वाले काम करेंगे तो ये अवार्ड उन इलाकों में मिलता है। कर्नाटक में इसको रिवाज दे, मैं तफसील से बात सुनाऊंगा। आज इस फ़ख्र वतन पर जो एजाज़ मिला, साबिक़ वज़ीर आला भी आए मुबारकबाद के लिए कि आज ये जो जलसा पूरे शिकारपुर ताल्लुक़ के नहीं बल्कि ज़िला शिमोगा कर्नाटक के भी कुछ लोग यहाँ पर दर्जों आ गए हैं। बड़ी मोहब्बतों से बच्चे भी आपके पास खड़े हैं, सुबह सुबह बच्चे भी आए। हमने ऐसे कोई इनको दावत नहीं दी, ऐसा कोई इसका कोई आपको इन्विटेशन नहीं है, कोई पैगाम नहीं है। जो मोहब्बत रखता था उसने अपनी गुलपोशी के ज़रिए अपनी अक़ीदत के फूल निछावर किए, और उसने, हमने किसी से नहीं कहा कि उनको मालूम हो गया। मुझे ये मालूम हुआ कि हाफिज़ नवाज़ी से इतनी मोहब्बत हो, उर्दू से कितनी मोहब्बत होगी। उन्होंने उर्दू की बड़ी मोहब्बत की, प्यार दिया, ये बच्चों ने प्यार दिया। उन्हीं के नतीजे के अंदर आज मैं शायरी कर रहा हूँ। अगर आज कई नाते हमदे जो मकबूल हैं यूट्यूब पर, वो हाफिज़ कर्नाटकी के उन बच्चों ने गाया, बड़े प्यार से गाया, उसी का नतीजा आज शहर ने तय किया। ऐसा तो घर पे पहुंच के कर रहे थे, तय किया कि हम एक जगह जमा होकर हम एक प्लेटफार्म पर हम एजाज़ करेंगे। एक पहली मर्तबा इस नौयत का देखा, सुबह से भी आप लोग देख रहे हैं। बस अल्लाह इनकी मोहब्बतों को बाकी रखे। हम इंशाअल्लाह जब तक, अभी 100 किताबें मेरी होनी जा रही हैं। मेरी किताब बाग़ अत्फ़ाल, 100वीं किताब बाग़ अत्फ़ाल, इंशाअल्लाह वो यहीं पर रिलीज़ होगी, मेरे गांव में रिलीज़ होगी, इसलिए कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं पर उसे रिलीज़ करना है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से कुछ लोग आएंगे, अदब अत्फ़ाल पर सेमिनार भी करेंगे, और उसके बाद वो किताब का इजरा भी होगा। देखिए, उर्दू ज़बान अपनी ज़बान, ये बहुत बड़ी ज़बान है। इस ज़बान को आप कोई अकेडमी के ना होने से गम करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा काम खुद चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपनी ज़ात में देखिए, उर्दू पढ़ने वाले लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसकी फ़हरिस्त आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आप उर्दू के जितने लोग हैं हल्के वाले, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपना जो शोरा उदबा हैं वो भी अपना काम करें। मैं यूनिवर्सिटी के जितने HODs हैं शोबे उर्दू के, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, अपने आसपास के लोगों की PhD को करें। आप तहक़ीक़ उन पर करें, रिसर्च उन पर करें, ताकि वो रिसर्च पहुँचते पहुँचते साहित्य अकादमी तक पहुँच जाएगा। आपने सिर्फ गालिब इकबाल, वो तो हमारे असातिज़ा हैं, उसको बुनियाद बना लिया है। जितनी भी शायरी करो, हमने यहाँ पर बज़्म हाफिज़ के नाम से नातों के प्रोग्राम किए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अदब के बाद और एक अदब भी है। ये अदब अलग और एक अदब अलग भी है। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब कहते हैं, वो अदब भी ज़रूरी है।
ये अदब के बाद और एक, हम बड़ों की इज़्ज़त करें, हमें शायरी है तो अपने आप को अना ना समझें, तकब्बुर ना करें। प्यारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों का तुफेल बोल रहा हूँ, बोले तो क्या मैं जान चली जाती है। अब ये लोग खड़े हुए हैं, इन्हीं का तुफेल, इन्होंने मोहब्बत दी हमको, गांव वाले मोहब्बत दिए, जहाँ जाते सलाम करें हम उनको, मोहब्बत से मिले, वो मोहब्बत ने यहाँ तक पहुँचाया है। हम आजिज़ी इनके सारी, हर अदीब से मैं क्या कहता हूँ, तुम्हारे मोहल्ले की स्कूल को जाओ, एक प्रोग्राम करो, अपने गाँव के अंदर एक प्रोग्राम करो, अपने गाँव के अंदर कोई बुलाए तो भी जाओ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हाँ चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर एक मैसेज छोड़ना चाहिए, ऑटोमेटिक मकबूल होता आदमी। या क्या हो रहा है कि हमारे शोरा उदबा को बुलाना, फ़ोन करना, ख़त लिखना, बात करने का लहजा रहना, मिटा दे अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हाफिज़ कर्नाटकी खाक में मिला है, तो उसके बाद चलकर ये लोग चाह रहे हैं, शिकारीपुर के लोगों में मोहब्बत आई है। मेरा नाम खज़र बेग, आलमी उर्दू हाई स्कूल का HM हूँ। वहाँ पर जो है 1980 साल से उर्दू मीडियम में जो है तकरीबन 40 बच्चों से शुरू हुई, आज जो है 300 से ज़ायद बच्चे वहाँ उर्दू मीडियम में जो है तालीम पढ़े। हर साल जो है हमारा रिज़ल्ट जो है 70 के ऊपर रहता, और वहाँ तालीम उर्दू में हासिल किए हुए बच्चे जो है इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े डिग्रियाँ भी जो हासिल किए हुए हैं। अब 10 साल से जो है हमारे अमजद मौलाना हाफिज़ कर्नाटकी जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हमारी स्कूल जो है बेंगलुरु के बेंगलुरु की अलमी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती, वो वहाँ के जो है वाइस चेयरमैन भी हो, तो उनकी निगरानी में हमारी स्कूल जो है और भी अच्छा जो है नशोनुमा पा रही। अमजद मौलाना के स्कूल में बहुत दिनों से काम की हूँ, मौलाना के साथ काम की हूँ। मौलाना ने जो किताबें लिखी, उसने किताबों में मैं और मौलाना दोनों मिलकर कैसेट बनाए थे। मुझे मौलाना के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था, और मैं मौलाना से उर्दू बहुत अच्छी फसी उर्दू सीखी हूँ। मौलाना ने मुझे बहुत रहबरी की है, और मुझे आज उन्हीं की रहबरी की वजह से मैं अलामीन के उर्दू हाई स्कूल में मुझे आज अंग्रेज़ी पोस्ट के वास्ते मौलाना ने मुझे मुंतखब किए हैं। मैं मौलाना का अपने दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस मौके पर हाफिज़ कर्नाटकी साहब को सिरालकोप्पा से अलामीन हाई स्कूल से तमाम तलबा की जानिब, तमाम असातिज़ा की जानिब से तहे दिल से मुबारकबादी पेश करती हूँ। आज का भी जो एजाज़ी प्रोग्राम हुआ, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शड़कप्पा अलामीन की तरफ से और तमाम असातिज़ा की तरफ से और उमाइदीन शहर की तरफ से हाफिज़ कर्नाटकी का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दौर पैदा। एक बहुत फेमस क्या शेर है। तो ये तो मेरे भाई हैं, और इनका बचपन मेरे साथ गुजरा है। मेरे सिर्फ 1 साल बड़े हैं, तो हमने साथ में स्कूल जाते थे, साथ में आते थे, खेलते कुछ, यानी बहुत करीब रहे। इन्होंने बहुत करीब से देखा हूँ मैं। इनके बचपन से ही शौक़ था शेर शायरी में, उर्दू के बहुत मद्दा थे। लेकिन हम ये किसको पढ़ते थे ना, तो ज़्यादातर इनका ध्यान उर्दू में होता था, उर्दू अंग्रेज़ी वगैरह में कम। तो ये ज़्यादातर शेर शायरी शायरों को पढ़ते, इकबाल की नज़मों को पढ़ते, और आपके गालिब के नज़मों को पढ़ते, और हमेशा गुनगुनाते रहते। वैसे तो मेरी अम्मी भी स्कूल टीचर थी, तो वो भी शायरा के मानी थी। उस ज़माने में इतना अरूज नहीं था, लेकिन वो हमारी एक बहन थी, इनका इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने मरसा लिखा था हमारी अम्मी ने। मरसा हमेशा रोते थे, गाती रहती थी। तो यानी वो जेनेटिक्स में आ गया है, यानी क्या कहते हैं, जेनेटिक्स हेरिडिटी से आ गया है कि शायद मेरी माँ में अशवार पैदा करने की सदायत थी, तो उन्होंने मरसा लिखा था। तो समझता हूँ कि वो विरासत इनको मिली है, हमारे भाइयों में इनको मिली है। तो हमेशा वो शेर लिखते थे, हमेशा शेरों को कलेक्ट करना, शेरों को जमा करना इनका फ़न था। जब हाई स्कूल में थे तो तमाम शेरों को लिख के बुक बनाते थे, बयास बनाते थे, बड़ी मोटी बयास बनाते थे, अच्छे अच्छे शेर। मैं बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने ये मकाम पाया, इन्होंने अपनी मेहनत से पाया है, ये इनकी ज़ाती मेहनत है अशार। और उसके बाद में अल्लाह ने इनको बहुत काम का मौका दिया, तालीमी इदारे उन्होंने बनाए, तो बच्चों से उनको बहुत लगन थी, बच्चों पर शायरी कहना, बच्चों पर कहना। तो वो हमेशा उसी में काम करते हैं, और किताबें बनाई, किताबें प्रिंट करवाई, फिर उन्होंने हर जगह पहुंचाया। फिर अल्लाह के फजल से उनको एक मौका मिला कि एकेडमी में उनको चेयरमैन बनाया गया, तो वहाँ उन्होंने बहुत खिदमत की। एकेडमी के अंदर उन्होंने अपना पैसा, ज़ाती पैसा लगाया, मैंने खुद देखा है। एकेडमी के पैसे के अलावा अपना ज़ाती पैसा लगा कर भी उन्होंने खिदमत की, उर्दू के लिए बहुत खिदमत की, और आज भी वही कोशिश है। हालांकि उनके स्कूल्स बहुत सारे हैं, मैं कहता हूँ कि आप जो उर्दू से हटकर काम कीजिए, तो वो तो मानते हैं, कहते हैं, लेकिन करते हैं उर्दू पर ही। अदब इत्फाल यानी बच्चों के शायर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को शिकारीपुर के बच्चों ने भी इनकी लिखी हुई नात और नज़मों को पढ़कर इन्हें मुबारकबादी पेश की।
मदीना 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 मेरा दिल मेरी दौलत मदीने में है मेरा दिल मेरी दौलत मदीने में है मेरे ख्वाबों की जन्नत मदीने में है मेरा दिल मेरी दौलत मदीने में है मेरे ख्वाबों की जन्नत मदीने में है जिस पे ईमान लाकर मैं मोमिन हुआ जिस नबी की सुकूनत मदीने में है उस नबी की सुकूनत मदीने में है दिल धड़कता है सीने में मेरे मगर धड़कनों की ज़मानत मदीने में है मेरा दिल मेरी दौलत मदीने में है मेरे ख्वाबों की जन्नत मदीने में है